So dear students, in our last lectures, in our previous lecture, we have discussed about simple harmonic motion and what are the different characteristics of simple harmonic motion, in which we have seen displacement, we have seen velocity, we have seen acceleration and time period, and we have seen where the velocity is minimum, where the velocity is maximum, where the displacement, where the acceleration is minimum, where the acceleration is maximum. And today our topic is energy in simple harmonic motion. Yani whenever a particle executes simple harmonic motion, what about the energies? What kind of energy it carries, right? So I will tell you, I will show you when a particle, I have shown in the previous lecture slide, it is a particle which is in simple harmonic motion, to and fro motion, back and forth motion. So when it is displaced from the mean position, when it is displaced from the mean position, and once again, when it is displaced from the mean position, there is some displacement. यानी ये चेंज करता है अपनी पोजीशन, अपनी चेंज करता है पोजीशन. और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला है जो टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. यू सी, जब मैं इसको अपनी जगह से कुछ फोर्स देता हूं, इसको डिस्प्लेस कराता हूं अपनी जगह से, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. तो पोजीशन के कारण, लोकेशन के कारण सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी होती है. और सेम थिंग व्हेन, जब मैं इसको फिर से हिलाता हूं, देयर इज सम काइंड ऑफ वेलोसिटी. whenever there is velocity, and in velocity के साथ related होता है kinetic energy. So energy in simple harmonic motion, when a particle executes simple harmonic motion, so it carries two types of energy. One is kinetic energy and one is potential energy. So we can write it, a particle executing simple harmonic motion has a particle executing simple harmonic motion has two types of energies: kinetic energy and potential energy. Okay, so what we have to remember, whenever a particle executes simple harmonic motion, it has two types of energies. One is kinetic energy and one is potential energy, and these two energies vary between these two types of energies. These two types of energies varies between limits 0 to maximum. Okay, so whenever a particle moves is in simple harmonic motion, जब वो हार्मोनिक मोशन में होता है, उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है. पोजीशन के कारण, जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, पोजीशन के कारण उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और उसमें एक वेलोसिटी आ जाती है, उस वेलोसिटी के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है. और ये एनर्जी चेंज होती है बिटवीन 0 टू सम मैक्सिमम लिमिट, यानी बिटवीन 0 टू मैक्सिमम लिमिट में ये दोनों आ जाती हैं. सो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. पहले हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. Potential energy. Potential energy. So what is meant by a potential energy? Once again, I will tell you one thing. Potential energy in the last chapters, आपने सुना होगा potential energy के बारे में, kinetic energy के बारे में, in case of kinematics and all that. यहां पर ये एक बॉडी है, इस बॉडी को, ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इस बॉडी को मैं डिस्प्लेस करता हूं, मैं इसको फोर्स लगा के इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करता हूं,
यानी इसके पास जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो नीचे एक फोर्स लग जाता है। कौन सा फोर्स है वो? दैट फोर्स इज mg, यानी इसके पास मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स। उस फोर्स के अगेंस्ट फिर से इस बॉडी को मैं mg फोर्स के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहा हूं और यहां से लेकर यहां तक इसके पास एक हाइट आ जाती है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू mgh। क्लियर है आपको? हाइट के कारण, डिस्प्लेसमेंट के कारण इसके पास एक एनर्जी आ जाती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज mgh। सेम केस समझिए। तो डिस्प्लेसमेंट जब मिलता है, इसी तरह से जब ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता होगा तो जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाता है। जब रेस्टोरिंग फोर्स आ जाता है इसमें डिस्प्लेसमेंट भी कुछ आ जाता है, तो मुझे इसके ऊपर एक काम करना होता है, यानी मैं इसको यहां से इधर ले जाता हूं, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आ जाता है और जब ये वापस आ जाता है तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है यहां पर, जो एक पोजीशन के कारण होती है, एक लोकेशन के कारण होती है, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, when a body is